नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে ভারতের সমস্ত রেল স্টেশনগুলিতে স্থিত লবিগুলির সামনে 10টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ধর্মঘটের সমর্থন করা হয়, যেখানে তারা জানান সকলেই বেসরকারীকরণ এবং শ্রম আইন পরিবর্তন করার নীতির বিরোধিতা করে। এই সময় সমস্ত লোকো রানিং স্টাফ অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে টাটানগর রেল স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে স্থিত লবির সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, যেখানে বেসরকারীকরণের পাশাপাশি এনপিএস এর নীতির প্রতিবাদও করা হয়। এ প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি পারস কুমার বলেন যে কিছু জায়গায় এনডিএকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কোথাও এনডিএ পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি করা হচ্ছে, টিএ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ডিএ ফ্রিজের মাধ্যমে ডিএ বেস ফেয়ার পরিবর্তন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত নীতির বিরোধিতা করা হচ্ছে, যেখানে 10টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যা সমর্থনে গোটা ভারত জুড়ে স্থিত বিভিন্ন লবির সামনে গেট মিটিং করার সময় সোচ্চার করা হচ্ছে। आगे का निर्णय हमारा केंद्रीय कमेटी का एक प्रोग्राम हमारा 30 तारीख को है, जो वेज कटिलमेंट चल रहा है। कहीं एनडीए को रोका जा रहा है, एनडीए का रिकवरी का आदेश फरमान आ रहा है, कहीं पर टीए आधा काटने का ये हो रहा है, फिर डीए फ्रीज किया जा रहा है, डीए का बेस ईयर चेंज किया जा रहा है 2001 से 16। ये सारे जो वेतन कटौती का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका खिलाफ में 30 तारीख को 30 नवंबर को हम लोग पूरे भारतवर्ष में हर लॉबी के सामने फिर धरना प्रदर्शन और रैली करेंगे। ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়গুলি জেলা প্রশাসনের সাথে বৈঠকের পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো শিক্ষার্থী যদি 2 চাকার গাড়ি ব্যবহার করে স্কুলে পৌঁছায় তবে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং স্কুল থেকে নামও কেটে দেওয়া হবে। এদিকে এই আদেশ জারি হওয়ার পর আবার একবার অভিভাবক সংঘ রাস্তায় নেমেছে। অভিভাবক সংঘ এই স্কুলগুলিকে দোষারোপ করে বলে যে সরকার যখন সমস্ত বিদ্যালয়কে নিজস্ব বাস দিতে হবে সেই নির্দেশিকা জারি করেছিল, তখন স্কুলগুলি কেন নিজস্ব বাস চালাচ্ছে না। স্কুল বাস না হওয়ার কারণে ভাড়া নিয়ে স্কুল ভ্যান এবং অটোগুলি স্বেচ্ছাচারিতা চালায়। আর এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের স্কুলে মোটরসাইকেলে ছেড়ে দেয় তবে দোষ কোথায়? তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে যদি এই আইন প্রয়োগ করা হয় তবে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা হবে। बच्चे दोपहिया वाहन से अगर स्कूल आ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार स्वतः स्कूल प्रबंधन ही है, क्योंकि सभी आदेश और दिशा निर्देश होने के बावजूद भी जमशेदपुर के स्कूलों द्वारा बस नहीं चलाया जाता है। बच्चे निजी वाहनों से स्कूल जाने को मजबूर हैं और निजी वाहनों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बच्चे को चोटिल होना जमशेदपुर शहर के लिए एक आम समस्या हो गई है। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ আহ্বানে বীমা সংস্থা যেমন এলআইসি ও অন্যান্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলির আজ 1 দিবসীয় ধর্মঘট পালন করা হয়। সমস্ত সরকারি সংস্থা, ডাকঘর, ব্যাংক ইত্যাদিতে কাজ বন্ধ ছিল। এদিকে কোথাও কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসে, আবার কোথাও র্যালি বের করে বেসরকারীকরণ ও শ্রম বিরোধী সংশোধনী ও কৃষি বিলের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে একসাথে প্রতিবাদ জানানো হয়। আজ বেকারত্বের হার হোক বা কোম্পানিগুলির বন্ধ হওয়া বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাঁটাই বা শ্রমিক বিরোধী সংগঠনের কাজের বিরোধিতা, বিরোধী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষি বিল বিধায়ক পাশ করার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে 1 দিবসীয় ধর্মঘটের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকট করা হয়। जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी कानून के विरोध में हम लोग का 1 दिवसीय हड़ताल है। बैंकों में पर्टिकुलरली जो निजीकरण की का ये प्रयास हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मेरा नाम चंडीचरण साधु, मैं सचिव, प्रमंडलीय सचिव अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ। हमारा मांग है कि एनपीएस को वापस लेना है, जितना रिक्त पद है अविलंब भरना है, प्राइवेटाइजेशन जो करने जा रहा है उसको हम लोग बंद करने के लिए मांग करते हैं, आउटसोर्सिंग जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसको हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा 10 सूत्री मांग के समर्थन में हम लोग। पेंशन देखिए, एक तो ये इतना गलत नीति है, 1/1/2004 से जो लागू किया गया है नया पेंशन सिस्टम, इसमें हमारा कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं और सरकार 10% देती है। ये जब अंतिम समय में हम अवसर लेंगे उसका 60% दिया जाएगा और 40% जो जमा रहेगा उसके आधार पर हमको सूद के बदौलत 1 लाख में 400 रुपया। अभी हमारा एक कर्मचारी रिटायरमेंट किया उसको 810 रुपया मिल रहा है और एक कर्मचारी अवसर लिया उसको 913 रुपया मिलता है, जो कि वृद्धावस्था सरकार पेंशन देती है वृद्धाओं को लिए 1000 रुपया, उससे भी कम है। और उसमें हम जिंदगी कैसे अवसर करेंगे। स्ट्राइक का कॉल है और ये सारे मुद्दे जो हैं ये हमारे पार्शियल मुद्दे नहीं है, ये बैंकिंग उद्योग और उसके काम करने वाले अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी का है।
उन्होंने बार बार इस बात के लिए जोर दिया कि मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि मैं स्ट्राइक में नहीं हूँ। हमने कहा आपके संगठन से भी हमें मिला है सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए, इसीलिए आपसे मैं उम्मीद करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें मोरल सपोर्ट करें। जबरन ताला खुलवाएगी? हाँ, खुलवाने की बात वो कर रहे थे, चूँकि वो स्ट्राइक में नहीं है। उनका तर्क ये था, हमने कहा आप स्ट्राइक में नहीं है, लेकिन आपके संगठन जहाँ से आप बिलोंग करते थे आज ना करें। उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है कि उनको मोरल सपोर्ट हमें मिलेगा, इसीलिए उसी कॉल के तहत हम लोग यहाँ पिकेट पर किए हुए हैं। अगर आपको जबरन जाना है तो जाइए, हम आपको रिक्वेस्ट करें। तो अंततः वो छोड़ के गए, आपके सामने ही गए। ট্রেড ইউনিয়ন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ধর্মঘটেও ভূমিকা রেখেছে, যেখানে জুসকো ইউনিয়নের সভাপতি রঘুনাথ পান্ডে তার সদস্যদের সাথে তাজ হোটেলে নিহত লোকেদের জন্য বিষ্ণুপুর সড়কে 1 মিনিটের নীরবতা পালন করেন এবং বলেন যে আজকের ধর্মঘটে শ্রমিকদের জন্য আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে, যার মধ্যে অনেক দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন পাওয়া উচিত। এই ধরনের দাবিগুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রঘুনাথ পান্ডে বলেন যে সরকার অন্ধ, বধির এবং শ্রমিকদের বিষয়ে কিছুই শুনতে চায় না। सभी गैर आयकर दाता परिवारों के लिए प्रति माह 7500 रुपया नगद हस्तांतरण को उनको दिया जाए। सभी जरूरतमंदों को 10 किलो मुफ्त चावल अनाज दिया जाए। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल में 200 दिनों का काम बढ़ी हुई मजदूरों पर उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का विस्तार, सभी क्षेत्र में रोजगार गारंटी का विस्तार। चौथा, सभी किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रमिक संहिता को वापस लो। पांचवा, वित्तीय क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोके और रेलवे, आयुध, कारखानों, बंदरगाहों आदि जैसे सरकारी विनिर्माण उपक्रम और सेवा संस्थाओं का निगमीकरण बंद करें। छठा, सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति पर ट्रैकिंग सर्कुलर को वापस लेना। सातवां, सभी को पेंशन प्रदान करें, एनपीएस को खत्म करें और पेंशन की को बहाल करें। ईपीएस 95 में सुधार करो, जो काफ़ी डिमांड दिनों से पूरे भारतवर्ष में एक युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। यही हमारा पॉइंट है। আজ বিরসানগরে মিশন মোদি অ্যাগেনের পিএম কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মহিলারা যোগ দিয়েছেন। এই অবসরে জেলা সভাপতি চাঁদমণি কুঙ্কাল, মহিলা জেলা সভাপতি রানী ঠাকুর, জেলা মন্ত্রী আভা ভার্মা সহ বহু মানুষ এই বৈঠকে অংশ নেন। সভায় আগত লোকেদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনা সম্পর্কে জানানো হয়। এরপরে প্রচুর মহিলা মিশন মোদি अगेन पीएम এর সাথে যুক্ত হন। आज मिशन मोदी अगेन के तरफ से हम लोग कुछ महिला को जोड़े हैं और इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये हमारा नारा है। जमशेदपुर महानगर के आज अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं आज जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा में जुड़ी है, जो काफ़ी गर्व और बहुत सशक्ति हमें दे रही है, बहुत शक्ति प्रदान कर रही है कि हम आज महिला इतने सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। और भी महिलाओं को जोड़ेंगे और महिलाओं का उत्थान के लिए जो मोदी जी जितना सारा प्रोग्राम, जितना सारा योजना बनाए हैं, वो सब हम घर घर पहुंचाएंगे। और महिलाओं का बहुत सारा परेशानी होती है, बहुत सारा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आज महिलाएं कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ चल रही है आगे, और अपने घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी टीम में भी सब महिलाएं आई हैं और देश के लिए, सेवा के लिए सब कार्य करेगी। পোটকা অঞ্চলের অন্তর্গত কালিকাপুরের বিমলা ভগত অন্য এক দাপুটে ব্যক্তির দ্বারা তার চাষের জমি দখলের বিষয়ে পোটকা সিওকে লিখিত অভিযোগ দিয়ে ন্যায় বিচারের জন্য আবেদন করেন। মামলা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে খাতা নম্বর 201, 202, প্লট নম্বর 159, 160 মাতকান্দি মৌজাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই জমিটির উপরে গ্রামের এক দাপুটে ব্যক্তি জোর করে আধিপত্য স্থাপন করেছে, যেখানে বিমলা ভগতকে কৃষি কাজও করতে দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত নথি বিমলা ভগতের নামে রয়েছে। আজ এই বিষয়ে বিমলা ভগত তার ছেলের সাথে এসে পোটকা অঞ্চলে অভিযোগ দায়ের করে তদন্তের দাবি জানান এবং তার জমি মুক্ত করার জন্য একটি দাবিপত্র জমা করেন। मेरा ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है दीपक भगत। हमने बहुत गरीब आदमी है, हमारा ज़मीन जबकि मेरा रायती ज़मीन है, पिताजी के नाम पे है। ज़बरदस्ती वो लोग दीपक भगत कब्जा किया हुआ है, जबकि हम लोग जाने के लिए खेतीबाड़ी करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करने देता है और कह रहा है कि हमारा ज़मीन है और हम किसी को करने नहीं देंगे, और बताता है कि मेरा ज़मीन के पास कोई भी काम नहीं करेगा, वही काम ज़बरदस्ती कर रहा है।
জবরদস্তি বলছে বিকিছে বলে আর এখন আমরাকে দেই নাই আর তো দেই নাই ও এখন নিজের মাটি কুড়াকুড়ি করাছে করছে। ভারত সরকার দ্বারা পাস হওয়া শ্রমিক বিরোধী আইন ও কৃষক বিল ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা কালো ব্যাজ লাগিয়ে জামশেদপুরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা প্রদর্শন করে। এই এক দিবসীয় ধর্মঘটে মুখ্য রূপে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল, তবে কংগ্রেসের সমর্থনও দেখা গেছে, যার ফলস্বরূপ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিজয় খা, যিনি তার সদস্যদের সাথে কালো ব্যাজ পরে সরকারের জনবিরোধী আইনের বিরোধিতা করেন। একই সাথে ইন্টকের রাজ্য সভাপতি রাকেশ্বর পান্ডে সাক্ষী আমবাগানের শ্রমিকদের ব্যাপক ভিড়ের মধ্যে বসে বলেন যে সরকার শ্রমিকদের হিতে আইন না নিয়ে আসা পর্যন্ত এবং কৃষকদের বিল প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। किसान बिल का और मजदूर विरोधी बिल का जो भारत सरकार लाई है, भाजपा की सरकार ने, उसका विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब तक किसान विरोधी मजदूर विरोधी वाल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी और झारखंड में अनूप सिंह के नेतृत्व में इंटक इस लड़ाई को आगे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन कर रही है। भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में, उस आह्वान के तहत आज पूरे देश में स्ट्राइक पर हम लोग हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों के खिलाफ इस देश में नए कानून बन रहे हैं। 100 सालों में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स लड़ करके मजदूरों ने लड़ाई लड़के जो कानून अपने पक्ष में कुछ बनवाया था भारत में, वो सभी कानूनों को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास लगातार चल रहा है। पूंजीपतियों को सरकार खुलकर मदद कर रही है और गरीबों के खिलाफ निर्णय ले रही है। अब तक को अवसर बनाते हुए कोरोना काल में मजदूर का को गुलाम बनाना, किसान को गुलाम बनाना और सार्वजनिक संगठन को निजीकरण के रास्ते में बढ़ना, इन तमाम चीज़ का खिलाफ में और इनके खिलाफ जब आंदोलन छेड़ा जा रहा है, गणतांत्रिक आंदोलन को, डेमोक्रेटिक राइट्स पर जो हमारे मौजूदा सरकार हमला बोल रहे हैं, उसके खिलाफ आज मजदूर, किसान, कर्मचारी लामबंद हुए हैं, वो हड़ताल कर रहा है। साथ में छात्र, नौजवान, महिला संगठन भी हमें समर्थन में सड़क पे उतर के हमको समर्थन दे रहे हैं। স্বাস্থ্য বিভাগ পুরো জেলায় বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে শহরের বাইরে থেকে ফিরে আসা লোকেদের টাটানগর রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ডে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। দীপাবলি, ছট ইত্যাদি উৎসবের পরে বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা সংক্রমণ তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমাগত বাড়ছিল, তবে স্বাস্থ্য বিভাগও এ সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ রয়েছে, যেখানে জেলার সিভিল সার্জনরা নিজেরাই প্রতিটি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। বাইরে থেকে আগত লোকেদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা টাটানগর রেল স্টেশন সহ বাস স্টপগুলিতেও রয়েছেন, যেখানে বাইরে থেকে আগত লোকেদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তবে তাদের আইসোলেটও করা হচ্ছে। बहुत प्रशासन की तरफ से बहुत ही इस पर प्रयास किया गया है और बड़ा ही सार्थक प्रयास हुआ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलन होना और बाहर से लोगों का आना भी जारी है और रहेगा। इसके कारण थोड़ी उम्मीद लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अंदेशा हो रहा है कि शायद फिर से हम लोग सेकेंड स्पाइक की तरफ बढ़ जाए। इसके लिए इसके तहत सबसे पहले हम लोग जो बाहर से लोग आ रहे हैं, स्टेशन पर आ रहे हैं, बस स्टैंड में आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, सारे जगह प्रशासन की तरफ से पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और चेक पोस्ट लगा करके सब जांच हो रही है। और स्टेशन पर हम लोग के कर्मी हैं और वहाँ पर वो लोग कोविड जांच भी कर रहे हैं। बराबर रैट की जांच हुई है, कल भी 1000 के आसपास करीब जांच की गई है। इस तरह से रूटीनली हम लोग जांच कर रहे हैं और जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको हम लोग आइसोलेशन दे रहे हैं, और ताकि कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कम से कम कंट्रोल करके हम ऐसा कर सके कि उसके स्थिति बिगड़ने ना पाए। सर, क्वारंटीन सेंटर फिर वगैरह ऐसा कुछ बनाने का अभी तैयारी? ये तो पहले ही से थी इसकी अंदेशा, इसलिए हमारे और कुछ बढ़ाने का स्वास्थ्य सचिव की तरफ से इसका आया हुआ था कि सारा आकलन करके रखिए। और जो अभी फिलहाल तो हम ऑलमोस्ट बहुत कुछ बंद कर दिया गया था चूंकि नहीं था केस, वो भी हम लोग रेडीनेस में है कि किसी समय 24 आवर्स नोटिस पर स्टार्ट कर दे सकते हैं। जहाँ केस बढ़ने लगे हम लोग तुरंत अलर्ट हैं और उसको हम लोग तुरंत कंटेन करेंगे और हम लोग सारी व्यवस्था फिर से जो पहली थी वो बहाल करेंगे। बस वही पुराना कि आप लोग भाई मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रखिए और सफाई, हाथ का जो हैंड वॉश के लिए और सैनिटाइजर का फ्रिक्वेंट यूज वो कीजिए। खास करके जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे अनुरोध है जो कम से कम अपने परिवार से भी मिलने में थोड़ा सा परहेज रखें और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा क्वारंटाइन, वो 14 दिन क्वारंटाइन मेंटेन।
সারা দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যাংক ধর্মঘটে রয়েছে। এই ধর্মঘটের মূল কারণ হলো শ্রমিক এবং ব্যাংকগুলোর সাথে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিবর্তন করেছে সেই বিষয়। জানানো হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম নীতিটি সংশোধন করেছে, যার জন্য সারা দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘটে রয়েছে। ব্যাংকগুলিও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। অন্যদিকে ব্যাংকগুলিকেও এখন বেসরকারি কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংশোধন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হচ্ছে। এখন ট্রেড ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে যে সরকার যদি আইন প্রত্যাহার না করে তবে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে একদিনের ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। और आज जमशेदपुर शहर में हम लोग आम बगान मैदान में एकत्रित हुए हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद प्रशासन के द्वारा अभी प्रोग्राम की अनुमति मिली है। अभी प्रोग्राम की अनुमति मिली है और जिसके लिए हम लोग जिला प्रशासन को धन्यवाद भी देते हैं। कोविड को देखते हुए हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि कोविड का पालन हम लोग कर रहे हैं, सरकार इसके आड़ में मजदूरों के नीति को धड़ाधड़ चेंज करते जा रहा है, कानून में धड़ाधड़ बदलाव करते जा रहा है। तो दूसरी ओर कहना है कि अब मजदूरों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो संघर्ष है, और संघर्ष में उतारने की शुरुआत आज के इस आंदोलन से हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में सड़क से लेकर के सदन तक मजदूर रोड पर उतरेंगे। এসইউসিআই কৃষক সংগঠন, যুব সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে চান্ডিল চকবাজারে মুখ্য সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক কৃষক বিরোধী, যুব বিরোধী এবং এনইপি 2020 ছাত্র বিরোধী ভুল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। सरकार की जो जन विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, शिक्षा विरोधी नीति है, इसको वो लागू ना कर पाए, इस स्तर में हम लोग आंदोलन को 26 নভেম্বর সংবিধান দিবস উপলক্ষে পূর্ব সিংভূম জেলার সরকারি দপ্তরে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংকল্প নেওয়া হয়। জামশেদপুরের জেলা প্রশাসক সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সুরজ কুমার এই প্রস্তাবনাটি পড়েন এবং উপস্থিত সদস্যরা পুনরাবৃত্তি করেন এবং সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত পথ অনুসরণ করার শপথ নেন। এই অবসরে জেলা প্রশাসক সভাগারে উপস্থিত সদস্যদের সম্বোধিত করে বলেন, পুরো সংবিধানের সারমর্ম এই প্রস্তাবনাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি সকল সদস্যগণের কাছে সংবিধানের প্রস্তাব ও বিধানকে অনুসরণ করার এবং তাদের আচরণের মাধ্যমে সংবিধানের মর্যাদা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে টাটানগর রেল স্টেশন চত্বরে স্টেশন ডাইরেক্টরের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রত্যেকেই ভারতের সংবিধানকে সততার সাথে অনুসরণ করার সংকল্প করে। সংবিধান দিবস উপলক্ষে পুরো দেশ ও রাজ্য সহ শহরের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। हम सभी रेल कर्मचारियों ने संविधान का शपथ ग्रहण किया ताकि सभी व्यक्तियों में ये संविधान की जागरूकता हो। 2021 সালে জনগণনা কলমে সারনা ধর্মকোড অন্তর্ভুক্তির খুশিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জামশেদপুর ব্লকের তরফ থেকে পদযাত্রা বের করা হয়, যেখানে করন্ডি চক থেকে পদযাত্রাটি শুরু করে অধিকারী কার্যালয়ে শেষ হয়। এই পদযাত্রার নেতৃত্ব ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জামশেদপুর ব্লক কমিটির অধ্যক্ষ বাহাদুর কিস্কু করেন। এই সময় জামশেদপুর ব্লক কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তথ্য প্রদান করে ব্লক সভাপতি বাহাদুর কিস্কু বলেন যে বিধানসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে সারনা ধর্মকোডটি পাস করার পাশাপাশি 2021 সালের জনগণনাতে আদিবাসী সারনা কোড অন্তর্ভুক্ত করার খুশিতে জামশেদপুর ব্লক কমিটির তরফ থেকে পদযাত্রা বের করে জোনাল অফিসারের কার্যালয়ে পৌঁছে অভিনন্দন জানানো হয়। सारना धर्म कोड को पारित किए जाने की खुशी में और आगामी 2020-21 में आदिवासी सारना धर्म कोड को अलग से कॉलम रखने के खुशी में करंडी चौक से लेकर सीओ ऑफिस तक हम लोग पद यात्रा किए और सीओ ऑफिस तक उपस्थित होने के बाद सीओ साहब से मुलाकात कर जो सरकार के जो अंग है सीओ साहब उनको भी हम लोग बधाई दिए।